Hello everyone, this is Yamini Seni and we were doing class 9 subject science chapter number 5, the fundamental unit of life. So we are done with the what are living organism made up of. We are done with the what are these structures called. Those are the cells. We are done with this more to know box, which is very important. Then we have started this what is a cell made up of and what is the structural organization of a cell. Here we talked about that there are three main features which are already there in all the cells, almost all the cells, which are plasma membrane, number one, number two is nucleus, and number three is cytoplasm. So now today we have to start it from the plasma membrane or the cell membrane. The cell membrane is also known as the plasma membrane and vice versa. So now this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. That means कि ये एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री की तरह वर्क करता है. Now, the plasma membrane allows or permits the entry or exit of some materials in and out of the cell. अभी क्योंकि बाउंड्री है तो ये किन्हीं किन्हीं मटेरियल को जो कि हमारे सेल के लिए सही है या हमें उनकी ज़रूरत होती है तो उनको इन और आउट करने की परमिशन देता है और किसी किसी के लिए ये परमिटेबल नहीं होता है. ओके. So now it also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. अब ये क्योंकि किसी किसी को आने देता है अंदर और बाकियों को नहीं आने देता है, then इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, सेलेक्टिव हो जाता है. It allows someone and it do not allow someone. So this selective word gives it a name as a selectively permeable membrane. Here you can see selectively permeable membrane. So now how does the movement of substance take place into the cell? How do substances move out of the cell? तो ये जो मूवमेंट है वो सब्सटेंसेस का किस तरीके से होता है ये देखेंगे. खास इसमें जो ये वाली चीज़ है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो आप इसमें यही पैराग्राफ जो है वो ऐड करेंगे कि किस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को नहीं अंदर आने देता है. दैट इट परमिट समथिंग एंड इट डू नॉट अलाउ समथिंग to enter into the cell or to do movement inside or outside the cell. So now next question which we have over here is कि ये जो movement है of substances वो होता कैसे है. So some of substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. तो ये एक प्रोसेस है डिफ्यूजन नाम का जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कर सकती हैं. So we have studied the process of diffusion in earlier chapters. Like we saw that there is a spontaneous movement of substance from region of high concentration to a region where its concentration is low. तो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है. ये जो भी सब्सटेंस है ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, यानी कि अचानक से मूवमेंट है जहाँ पे भी जो कंसनट्रेशन लेवल है वो हाई होता है वहाँ से जो लिक्विड है या जो सब्सटेंस है वो दूसरी तरफ मूव कर जाता है जहाँ पे लो कंसनट्रेशन होता है. देन ऐसे ही अगर दूसरी तरफ जो है वो कंसनट्रेशन हाई हो जाता है, देन जहाँ पे लो होता है यानी कि जो पहली तरफ थी वहाँ पर फिर वो वापस आ जाता है. सो ये जो मूवमेंट है वो चलता रहता है फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो. So now something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be concentrations inside the cell, or requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentrations inside the cell. So what happens over here is कि जो जिस तरह से डिफ्यूजन होता है उसी तरीके से जो CO2 है वो हमारे जो सेल है उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसे हमें बाहर रिमूव करना होता है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो भी हाई होता है इनसाइड द सेल. तो इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द इनसाइड ऑफ द सेल. तो देखो जो अंदर की साइड है वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है और जो बाहर की साइड है सेल की वहाँ पे कम कंसंट्रेशन है. तो CO2 अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन किस तरफ जाना चाहिए, अंदर या बाहर? करेक्ट. इफ़ यू आर सेइंग दैट आउटसाइड देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि बाहर की तरफ जाएगा. वाई? बिकॉज वहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेवल है CO2 का दैट इज़ लो.
और हमें पता है कि डिफ्यूजन में जो कंसनट्रेशन जहाँ पे लो होता है वहीं उसी तरफ जो सब्सटेंस है वो मूव ऑन करता है. So now as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion, right? So now what happens is this similarly O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. जैसे ही जो सेल के अंदर डिक्रीज होता है O2 का लेवल, तो जो बाहर वाली ऑक्सीजन है वो यानी हाई कंसनट्रेशन वाली जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ आ जाती है बिकॉज देयर इज़ अ लो कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल of O2. So thus diffusion plays an important role in the gases exchange between the cells as well as the cell and its external environment. Water also obeys the laws of or law of diffusion. So what एक हमने बात करी कि जो gases का movement है that occurs with the help of diffusion. नाउ अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वही वर्क करता है. कैसे? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब देखो अगर वाटर की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होता है? ऑस्मोसिस. अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो उस प्रोसेस का नाम था डिफ्यूजन. सो यहाँ पे देखेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर. अब जितना भी जो मूवमेंट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा अंदर बाहर सेल के, तो वो किस पे अफेक्ट करेगा? वो इस पे अफेक्ट करेगा कि किस अमाउंट में जो सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया है. तो thus osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium reaches. तो नाउ लुक व्हाट हैपेंस कि जो ऑस्मोसिस है उसमें भी सेम चीज़ होती है. हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है, पर इसमें क्या होता है ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस नहीं रहता है. इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों साइड अंदर और बाहर इक्वल अमाउंट ऑफ जो कंसनट्रेशन है वो रहता है. सो ये इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ कंसनट्रेशन है. तो ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है या तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते हैं. सो व्हाट विल हैपन इफ वी पुट अ एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. Now this is very interesting thing to look on or to read upon. That is अगर हम दो सेल लेते हैं, एक एनिमल सेल और हम एक लेते हैं प्लांट सेल, और उसको हमने शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमने उसे रखा. देन व्हाट हैपन्स? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन. इन तीनों में से कोई चीज़ होगी. सो नंबर वन चीज़ क्या है? इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. अब देखो क्या होगा कि अगर जो मीडियम है सराउंडिंग का सेल के, अगर हाई वाटर कंसनट्रेशन है, देन द सेल, अगर जो सराउंडिंग है उसमें अगर हाई वाटर कंसनट्रेशन है सेल के अकॉर्डिंग, तो डिफ्यूजन तो क्या होगा, जो हमारा आउटसाइड का सोल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगा और जो सेल है उसके अंदर जो वाटर है वो गेन कर लेगा. बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर गेन कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस, करेक्ट. तो ऑस्मोसिस यहाँ पे होगा. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे. So water molecules are free to pass across the cell membrane in both the direction, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell. The cell is likely to swell up. तो जो सेल है वो ज़्यादा स्वेल अप हो जाएगा. जब हमने बात करी थी कि जो ऑस्मोसिस है वो इक्विलिब्रियम कर लेता है, राइट? तो वो रहेगा, इक्विलिब्रियम वो करता रहेगा, बट फिर भी हम देखेंगे कि सम पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जो सेल के अंदर का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग, जिसकी वजह से जो सेल है हमारा वो स्वेलन अप भी हो गया है. तो जब सेल स्वेलन अप होगा दैट मीन्स जब अंदर की तरफ हायर कंसनट्रेशन हो जाएगा वाटर का बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. द वर्ड हाइपो से आप ध्यान रखेंगे कि इसमें स्वेल अप हो रहा है सेल. ओके.
इस बात को ध्यान रखेंगे. नाउ सेकेंड चीज़ देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इन द सेकेंड केस. इफ़ द मीडियम हैज़ exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. That means जब दोनों तरफ जो है कोई मूवमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम आ चुका है, जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है हम अगर ऑस्मोसिस में बात करें तो. सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन is the same as the amount going out. So there is no overall movement of the water. The cell will stay the same size. तो यहाँ पे जो सेल है वो सेम साइज का रहेगा, जितना अमाउंट अंदर जा रहा है उतना ही अमाउंट बाहर आ रहा है ऑफ द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, तो जब सेम साइज रहेगा और नेट मूवमेंट अगर ज़ीरो होगा या नो चेंज होगा तो वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा. अगर स्वेलन अप हो जाता तो वो कौन सा था, हाइपोटोनिक. अगर सेम साइज का रहेगा तो वो आइसोटोनिक. नाउ लेट अस सी द थर्ड केस. इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Now look what happens कि जो lower concentration of water है that is वो बाहर की तरफ होगा. अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा. Now let us see that again water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore the cell will shrink. तो जो शेल है वो हमारा श्रिंक कर जाएगा, दैट मीन सिकुड़ जाएगा, और इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, सो अभी हमने इस थ्री पॉइंट से हमने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है. नंबर 1 इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें जो सेल है वो स्वॉलन अप हो रहा है, राइट, स्वेल कर रहा है. अनदर वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर सेम साइज रह रहा है जैसे पहले था. देन वी हैव द थर्ड वन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारा जो सेल है वो श्रिंक कर रहा है. ओके, सो इसको ध्यान रखेंगे. 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक. इसमें स्वॉलन अप होता है, इसमें सेम साइज रहता है, नेट मूवमेंट ज़ीरो रहता है और इसमें श्रिंक हो जाता है. ओके.